Bismillahirrahmanirrahim. So this video is about the control flow in C++. We are going to learn about the control flow statement. So first thing to ask is how we come up over here and why we come up over here. Okay. So अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने loops के बारे में learn किया था and what is basically loop? Loop is going to use to repeat a certain process to some number of the times. ठीक है. जब हम loop की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई खास काम कोई एक खास process जो है वो हमने कुछ certain number of times उसको repeat करवाना हो तो definitely what we are going to use it. The answer is so simple, loop. Okay, so the question is this ke what if we can control the way our loop operates. Okay, so what it means generally ke C++ पे हम लोगों ने कोई काम परफॉर्म करवाना है हमने उसके लिए लूप लगाया एंड वो काम मल्टीपल टाइम्स जो है वो हमारा लूप ऑपरेट करता रहेगा बट लूप का एक खास काम है ठीक है if whatever loop I'm going to use it is going to be line number 1 line 2 line 3 line 4 for second iteration it is going to up over here and repeat all the process overall again ठीक है so ये लूप का प्रोसेस है तो C++ में अगर हमने इस लूप के ऑपरेट करने का जो तरीका है वो कंट्रोल करना हो तो how we are going to use that. So in C++ what it means we can jump out of the loop. Number one we can so must be if we are over here so we can jump out of the loop. Okay, or jump to the starting condition of the loop. If I am over here then बजाय इसके कि मैं अपनी नीचे वाली 2-3 lines को भी complete करूँ तो what I can do I can jump over the condition ठीक है but somehow ये मैं क्या कर रही हूँ ये मैं एक normal flow को क्या कर रही हूँ control कर रही हूँ ठीक है. So it's not the simple sequence like one line, first line, second line, third line, fourth line, and then it's overall fifth line. What if over here I want to skip all that written in lower part और मैं जो है वो loop से बाहर आ जाऊँ. First thing. And the second thing, what if अगर मैं यहाँ पर नीचे वाली या फिर दोबारा iterations को repeat करना है ना चाहूँ and what if I'm going to come over here again. ठीक है, I'm going to increment my loop and then overall story goes on. ठीक है, so how I'm going to use it? So for that I do in C++ all these things I do with the help of break statement and the continue statement respectively. Okay, what so the conclusion is this: in C++ we can jump out of the loop, okay, or jump to the starting condition of the loop, okay, whenever we want. The key point is this: whenever we want. So how we going to do this? We are going to do this with the help of a break statement and the continue statement respectively. Okay, so with this thing, what continue statement said? Continue statement will be like this: go to the next iteration of the loop if there is one. Okay, otherwise just end the loop. That's the whole story. Okay, so continue statement will be like, okay, ठीक है, if I'm in the loop first iteration, if I'm in the loop and मैं loop की first iteration में हूँ and I'm running, oh, okay, it's a continue statement, then what it means? It is going to say कि okay it's a continue then skip नीचे वाला part सारा skip कर दो और दोबारा से loop की next iteration पे move कर जाओ अगर वो exist करती है ठीक है. If not then just end the loop, no need to go. Break statement would be like this: it is used normally it is used in the switch statement but in loop it says just get out of the loop. Okay, so if I'm over here I'm in the loop and I'm moving and then finally it's a break statement. No matter उसके बाद भी जो है वो particular lines हैं execute करने के लिए but break statement would be like that. Oh okay, break statement, so somehow what I need to do I need to get out of the loop no matter आगे 3 iterations पड़ेंगे या 4 पड़ेंगे या 100 iterations पड़ेंगे ठीक है. So this is how it is going to happen. So we are going to just write the little code over here and then we will see how we are going to done all this thing. Okay, so over here I have wrote a little journal code and definitely what it looks like कि हमने एक for का loop लगाया है. Loop start होगा from the 1 and it goes on from the fifth iteration and definitely inside the loop मेरे पास दो statements हैं, that is listen world and the other statement is every life matters. Okay, so somehow if we are going to see the criteria over here तो अगर आप बीच में देखो तो यहाँ पर हमने continue statement लगाई हुई है ठीक है. So ultimately the continue statement क्योंकि मैंने अपने loop में use किया है तो technically what it is going to use going to say
कि अच्छा क्यों यूज होती है ये हमने देख लिया है कि सम हाउ इट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी, के हमने ये कहा है कि हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, अपने लूप की बॉडी के अंदर, जहाँ कहीं कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी इट मींस कि ये नीचे वाला पार्ट सारा स्किप कर देगी और कहाँ पे चली जाएगी, ओवर द स्टार्ट ऑफ द लूप अगेंस्ट. Okay, so whenever this particular statement is going to run, तो हमारा जो remaining statements है current iteration की, okay, current iteration की, like if I'm on the is equal to 0 and my next iteration is equal to 1, और मैं जो हूँ अपने इस 0th iteration पे हूँ, तो current iteration ये consider होगी, ये next iteration होगी. तो current iteration पे if I'm जहाँ कहीं भी मेरे पास continue statement आई है तो उसके बाद वाली lines जो है वो सारी skip हो जाएंगी और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द होल टास्क. सॉरी. So now this explanation would be like that कि हमारे पास दो continue statement है, one statement continue से पहले है और एक statement continue से बाद में है. ठीक है, so the point is this कि let me clear all this. So the point is this कि this statement ultimately in this code this statement is never going to execute. ठीक है, why? क्योंकि every time हर iteration में ये statement continue के बाद आ रही है. ठीक है, सो एवरी टाइम हर इटरेशन में उसको क्या मिल जाएगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल जाएगी और वो इस लाइन को स्किप कर देगी और कहाँ पे मूव कर जाएगी, ओवर द स्टार्ट ऑफ द लूप. ठीक है, दैट्स वेयर world operate. Okay, so somehow if I'm going to clear that and I'm going to run it, so this is the code. Okay, listen world, क्या है, i की वैल्यू क्या है, इस टाइम 0 है. ठीक है, i की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई और 0th आइट्रेशन पे पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दैट इज लिसन वर्ड. ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको क्या मिला, कंटिन्यू मिला. कंटिन्यू मींस कि इट्स नॉट गोइंग टू रन, इट्स द नेक्स्ट लाइन, और ये कहाँ पे चला जाएगा, अगेन स्टार्ट ऑफ द लूप पे चला जाएगा, विच मेक्स आई की वैल्यू सॉरी 1 से स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. एंड अगेन लिसन वर्ड, थर्ड टाइम लिसन वर्ड, फोर्थ टाइम लिसन वर्ड, फिफ्थ टाइम लिसन वर्ड, एंड डेफिनेटली सिक्स टाइम जो है वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो लूप इज नेवर गोइंग टू रन. Okay, so this is how a normal my basic continue work. Okay, let me clear this. Now let's just check about the break statement, जो कि हम इसी particular example के through देख लेते हैं. ठीक है, so break statement जो है वो हम again loop की body में use करते हैं. और क्यों use करते हैं, ताकि हम loop की body से बाहर आ जाएं, loop की body exit करने के लिए. ठीक है, so when एवर हमारे लूप को ब्रेक की स्टेटमेंट मिलती है लूप की बॉडी के अंदर, तो रिमेनिंग आइट्रेशंस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं. सो इफ आई एम गोइंग टू राइट अ ब्रेक ओवर हियर. ठीक है, और क्योंकि ब्रेक जैसे ही ब्रेक मिलेगी वो लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगी, तो जस्ट टू नो कि ओके ठीक है, इट हैपेंस, आई एम गोइंग टू कट दिस. ओके, और पेस्ट दिस ओवर हियर. ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि अच्छा इस पे भी हम ये भेज देते हैं. यहाँ पर एक सी आउट लिख लेते हैं, एंडल, और इन बिटवीन वी आर गोइंग टू से hello to the world, but in actual hello will never execute and it will go over this line. Let's run this just to check कि okay, so let me bold this. So first of all हमारी इस लूप की बॉडी के अंदर हम आए तो हमारी पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, that is the listen word. ठीक है, and whenever it is going to encounter the break statement, तो definitely break statement इसको क्या कहेगी, just get out of the loop. okay, और no matter उसके बाद कितनी iterations हमारी पड़ी हुई हैं, no matter उसके बाद कितनी statements पड़ी हुई हैं, I'm just going to get out of my loop. और this is the basically the criteria जस्ट टू चेक के ओके ठीक है ब्रेक स्टेटमेंट ने वर्क किया है. सो एवरी लाइफ मैटर्स हमारे पास लूप के बाहर एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, तो इट विल शोज के कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के बाहर आ गया है. सो दैट्स इट. अब हम एक थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल कर लेते हैं फॉर बोथ पर्टिकुलर टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल फॉर द ब्रेक स्टेटमेंट. अच्छा जी, हेडर फाइल्स हमारे पास हैं और लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज एन, और फॉर लूप हम लगाते हैं. फॉर लूप में n is going to equal to 1. normally I का फैक्टर जो है वो यूज होता है, recommended है, but it's not compulsory. so n is less than equal to 5 and I is basically for iterative. I have already told you in the last video. and plus plus I'm going to increment it. so that situation is like this कि मैं जो हूँ वो static print करवा रही हूँ. ठीक है, और static हमने बीच में लिख दिया है और यहाँ पर हम एंडर ले लेते हैं. ठीक
ठीक है जी। और ओवर हियर बट टेक्निकली इफ आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग, डेफिनेटली ये लूप जो है वो 5 टाइम्स स्टार आपका प्रिंट करवा देगा। दिस इज लाइक दिस, ओके। बट व्हाट इफ आई एम गोइंग टू से कि over here if n is going to be equal to 2, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, wherever n की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है, so I'm going to break that loop, okay। so बजाय इसके कि वो अपना पूरा करे, तो टेक्निकली उसको कहाँ पे आना चाहिए, over here, and यहाँ पे we are going to print one line just to show के okay ठीक है, कंट्रोल हमारा इधर आ चुका है। सॉरी, loops break, that's smiley, okay। so let's just run it, zoom it, ओके जी। सो टेक्निकली व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि हमारे पास n की वैल्यू क्योंकि 1 थी, 1 वैल्यू ट्रू हुई, फर्स्ट डायरेक्ट प्रिंट हुआ, और ओवर हियर हमने कहा कि n की वैल्यू क्या इज इक्वल टू 2 है, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो लूप की ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओवर हियर इसने कहा नो यू कांट गेट आउट, जिसको ओवर हियर n की वैल्यू प्लस प्लस, विच मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई, 2 होगी, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए सी आउट एक और स्टैटिक, और देन उसने चेक किया कि क्या इनकी वैल्यू ट्रू है, जो कि ट्रू हुई, और इसका मतलब कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। ब्रेक स्टेटमेंट सेड कि ओके जस्ट गेट आउट ऑफ द लूप, सो ओवर हियर एवरीथिंग बिहाइंड इट जस्ट कैंसल्ड, और हम जो है वो कहाँ पर आ गए, इस स्टेटमेंट पे आ गए, ठीक है। सो सॉरी, loop just break, okay। so this is how my whole criteria of book break statement works। अच्छा जी, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, और देन वी कैन एग्जीक्यूट द सिंपल स्टेटमेंट अगेन, ओके। सो हियर द क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट ट्राई, ओके, a question for you, ठीक है जी। just try one more example of the break, and just like this आप कोई you know infinite loop execute कर सकते हैं, okay। like this, how can I make an infinite loop? This is your first question. Here I have an answer over here. Already told you that this thing is going to work, okay। so ultimately this is something an infinite loop, and in C out I'm going to make a condition like enter 0 to stop this loop। so ultimately ये loop चलता रहेगा जब तक हम यूजर को कह रहे हैं कि 0। so here over here just take cin value, cin we are going to take in n, okay। so what we are going to do over here, that's the query, okay। so just check k n is equal to 2 or what, so that's a small query for you कि हम यहाँ पर क्या चेंजिंग लगाएंगे जिसमें हम लोग इनफाइनाइट लूप में 0 एंटर हो तो वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। that's the small query for you। ओके, सो इन लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन आई गेट टू नो कि आप लोगों को थोड़ा सा वाइल में प्रॉब्लम होता है, फॉर डेफिनेटली जो है वो आपको आगे है। तो अभी एक एग्जांपल हमने फॉर की एक ब्रेक के साथ देख लिया है, और हमने जो है वो कंटिन्यू के साथ देख लिया है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं अपने वाइल को टारगेट करके, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू टारगेट द कंटिन्यू स्टेटमेंट, ओके। कंटिन्यू, सो कंटिन्यू बेसिकली अगर हम प्रीवियसली जाएं तो कंटिन्यू का एक छोटा सा सिमिलर ब्रेक की स्टेटमेंट की तरह वर्क करेगी। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो आपका कंट्रोल कहाँ पास कर देगी, दोबारा से कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे। ओके, सो नॉर्मली लेट्स जस्ट स्टार्ट, हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन में विद बाय लूप। ओके, सो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल n, और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद 1, ठीक है जी। और वाइल लूप लगाते हैं, और कंडीशन हम ये रखते हैं कि वाइल लूप कब तक चलेगा, दैट इज 10, ओके। so we are going to write a 10, loop की body शुरू होगी, loop की body end होगी, and over here basically I am going to write a number of series, but somehow I will let you to judge के काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। and over here मैंने यहाँ पे condition लगा दी है equal to 5 की, और जब अगर condition check होती है तो definitely यहाँ पे continue statement होगी, but I am going to do something like this, why, just think about that, okay। so over here continue statement, और after the condition
मैं नॉर्मल अपने फ्लो में चलूँगी। हम किसको शो करवा देते हैं, एन की वैल्यू की को शो करवा देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड एल। और वही सेम सिनारियो जो आपको वाइल लूप में समझा हुआ है कि लूप की बॉडी निकलने से पहले पहले आप उसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट दे दो। बट यहाँ पर एक एम्बिग्विटी भी है, बट आई सी जस्ट लेट्स जस्ट रन और देखते हैं कि क्या आपने जो पर्टिकुलर जज किया इसके बारे में वो ठीक भी है या नहीं। ओके जी, सो हमारे पास जो है वो ये आउटपुट निकल आया। लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट, और इसको हम देखते हैं कि हम रन कैसे कर रहे हैं। एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 1 इन स्टार्ट, ठीक है। और कहाँ तक चलनी चाहिए, जहां तक मेरा लूप चल रहा है, ठीक है। और लूप मेरा चल रहा है 10 तक, और डेफिनेटली यहाँ पर लेस देन 10 तक, तो 1 से लेकर 9 तक चलना चाहिए, जो कि चल रहा है, ठीक है। मीन वाइल वट टाइम चाहिए कि ओके ठीक है 1 से 10 तक सारी सीरीज प्रिंट हो, बट अगर एन की वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है, कि अगर n की वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 5, तो सिंपली क्या कर दें, कंटिन्यू कर दें, विच मीन्स आई एम सेइंग कि आई डोंट वांट टू राइट द 5 वैल्यू। तो आई मीन कि 1 से लेकर 9 तक सारी सीरीज प्रोड्यूस हो, बट एक्सेप्ट किसके, आपके 5 तक के, 5 के, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट क्या नहीं है, 5 नहीं है। और उसके बाद हमारी सीरीज दोबारा से शुरू हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, सो यहाँ पर फिर हमने ये वाला काम क्यों किया है, वाई वाई दिस वर्क, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग होगा, हमने डायरेक्ट कंटिन्यू क्यों नहीं लिखा। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो हमारा जो वाइल का स्ट्रक्चर है वो कहता है कि लूप की बॉडी जब आप शुरू करो, इन नंबर 1 हमारी इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 मेरी टर्मिनेशन अलोंग विद दी कंडीशन, एंड एट द नंबर 3 हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। सो ओवर हेयर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा है, तो होना ये चाहिए था कि अगर एन की वैल्यू 5 है, ओके, बट अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखती विच मीन्स कि एन की वैल्यू 5 रहती, और ये क्या हो जाता, दोबारा कंडीशन को चेक करता, ठीक है। और ये हमारा एक एम्बिग्विटी यहाँ पर शो रहती है। आई जस्ट शो यू बाय कमेंटिंग दिस थिंग, ठीक है। बट ओवर हेयर आई नीड टू इंक्रीमेंट दैट वैल्यू, क्योंकि हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सी आउट और एन प्लस प्लस पे नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं कि जस्ट लीव वट रिटन ओवर हेयर, और उसके बाद आप डायरेक्ट कहाँ मूव कर जाओ अपने कंडीशन पे, ठीक है जी। सो दिस वाज द होल वर्किंग, दैट्स वाई ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया। बट लेट्स जस्ट ट्राई कि हम सिंपली क्या करते हैं, उसको रिमूव करके देखते हैं, ठीक है। So I just comment this thing, और let's just try and run this thing कि हमारे पास क्या आउटपुट निकलती है। So okay, just see, I'm going to zoom that. जस्ट सी हमारे आउटपुट जो है वो 1 2 3 4 आई है। वाई व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हम 1 2 3 4 पे हैं। इट्स बिकॉज के एवरी टाइम 1 ट्रू होती है, 2 ट्रू होती है, 3 ट्रू होती है, 4 ट्रू होती है, जब वो 5 पे आएगा तो 5 पे वो कंटिन्यू कर रहा है, और हर बार वो कंटिन्यू ही करता रहेगा, और जाहिर सी बात है कि आपके पास आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो कैसे आपका लूप चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जब वैल्यू हम कंडीशन के मुताबिक ले ही नहीं रहे हैं, तो एवरी टाइम वो इट्स जस्ट ऑल स्किप्ड ओवर हियर, ठीक है। तो वो नीचे आ ही नहीं रहा है, ना ही इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे, ना ही जर्नल वाइब, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर जरूरत थी कि हम क्या लगाएं, एक इंक्रीमेंट करें, ठीक है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। सो दिस वाज द जस्ट प्रैक्टिस सेशन ऑफ योर कंटिन्यू एंड लूप, एंड इन क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग डेफिनेटली जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।